Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class, students, we completed our chapter number 13, that is simple present and present continuous tense, right? And that was chapter number 13 from your grammar book, that is Collins English Grammar and Composition, right? And we were done with all the exercises. So I would be sending you the PDF today along with this video, so you can just complete your work and you can go through the next chapter, that is simple past and past continuous tense. So students, I request you all to open your English grammar textbook, page number 59, chapter number 14, simple past and past continuous tense. So students, here we are going to learn about one more tense. As we have already studied that in English, we normally present times in three different ways, right? That is the actions which happens in present, the actions that happens in past, and the actions that happens in future, right? And they are further divided into state of action, जैसे कि simple present, continuous, perfect and perfect continuous. In this we are going to study about two state of actions and related to past, that is simple past and past continuous tense. हमने previous chapter में पढ़ा था कि tenses क्या होता है. Tenses shows us the time when the action has been done, the time and the state of action which is done. Okay, so we are going to move ahead with the another time, that is past tense. Now students, I hope you know what do you mean by past, right? Past means जो actions already खत्म हो चुकी है वो, right? When we are talking about past, that means the thing has already happened and it is over, right? That is considered to be past tense. We already studied present tense before. Today we are going to study past, and then we would have one more tense, that is future. Okay, now let's see what is simple past tense. But before moving ahead with it, we'll just go through the questions which are given over here, right? Let's get started with it. Answer the following questions and share your answers with a friend. What were you doing yesterday at 4 p.m.? Second question is, what were you doing yesterday at 6 p.m.? What were you doing yesterday at 10 p.m. and what were you doing yesterday at 10 p.m.? Now here students, there are questions related to yesterday. Yesterday का मतलब क्या होता है? The day which is already over, right? The day which is already over, right? If we are talking about today, मतलब आज का दिन, and yesterday मतलब जो ख़त्म हो गया है वो वाला दिन, right? So here you need to answer related to what you were doing yesterday, and they are asking the questions at different time slot. That means 4 p.m. को आप क्या कर रहे थे, 6 p.m. को क्या कर रहे थे, 8 p.m. को और 10 p.m. को. और कब की बात हो रही है? yesterday की बात हो रही है. मतलब you have already finished that day and now you are being asked कि आप क्या कर रहे थे, right? So you need to answer. Now मान लो what were you doing yesterday at 4 p.m. अभी आपको आंसर जो भी लिखना है, we can write you can say I was reading a book at 4 p.m. What were you doing yesterday at 6 p.m.? Then you can write I was playing outside in the playground at 6 p.m. Then what were you doing yesterday at 8 p.m.? Then you can write that I was having my dinner at 8 p.m. And what were you doing yesterday at 10 p.m.? So here you can write that I was getting ready to go to bed at 10 p.m. Right? So these are some sample answers. You can write whatever you feel like writing, या फिर आप अपना रूटीन लिख सकते हो कि आप 4, 6, 8 और 10 p.m. को क्या कर रहे थे, right? And that too yesterday.
क्या करने वाले हो या क्या किया नहीं, ठीक है। हमको लिखना है यस्टरडे के बारे में। सो यू नीड टू रिमेंबर कि यस्टरडे की जब बात होती है मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, ओके। Okay, let's see the explanation which is given over here. Read the following sentences. Madhu went for a swim and Nisha sang for the radio. Now here students, if you see the words in bold, जो है went and sang, right? We have two words over here, that is went and sang. So students, in both the sentences, the verb went and sang, right? Both the verbs are considered to be in the past form, ठीक है। दोनों ही verbs जो है वो past form में है, क्योंकि वो कौन सी action दिखा रहे हैं। Those verbs are showing the actions which has already been performed by Madhu and Nisha. मतलब ये एक्टिविटी जो है, मधु वेंट फॉर अ स्विम, दैट मीन्स दिस एक्शन ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट और अभी ख़त्म हो गई है। और वैसे ही निशा सैंग फॉर द रेडियो। सो हियर द वर्ब सैंग, इट प्रेजेंट्स दैट निशा हैज़ ऑलरेडी कैरिड आउट दिस एक्टिविटी ऑफ सिंगिंग फॉर द रेडियो एंड इट इज़ ओवर, okay. So you need to remember when we are talking about past tense, at that time we use the सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ V2, जिसको हम पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है V1 जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, राइट। देन वी हैव V2 विच इज़ कंसिडर्ड टू बी पास्ट टेंस, राइट। एंड वी हैव V3 विच इज़ कंसिडर्ड टू बी पास्ट पार्टिसिपल। Okay, so we have 3 forms of the verb. The first one is considered to be base form, which we normally use it with present tense and future tense. Then the second one is past tense, जो हम past tense को represent करने के लिए use करते हैं, that is V2. And the third one is past participle, which we normally use in परफेक्ट टेंसेस, जो अभी आपको नहीं आने वाला है, वो आपको बाद में आएगा। सो वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट येस यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो वर्ब वेंट है वो V2 है, क्योंकि V1 या फिर जो बेस फॉर्म है वो है गो, ठीक है। गो है बेस फॉर्म और उसका V2 क्या होता है, वेंट। V2 मतलब पास्ट टेंस, गो का पास्ट क्या होगा, वेंट। वैसे ही सैंग, सैंग जो है, सॉरी, सैंग इज V2 मतलब पास्ट टेंस। सो बेस फॉर्म क्या है हमारा इसका, सिंग, ठीक है। सिंग इज द बेस फॉर्म एंड सैंग इज द पास्ट टेंस। सो वेन एवर वी आर राइटिंग अबाउट एन एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड, या फिर जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, राइट, जब हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ V2, that means the past form of the verb, okay. So you need to remember that the simple past tense describes an action that has been completed in past. It talks about that action which has been completed, मतलब जो ख़त्म हो गई है और वो भी past में, ठीक है। Here there are some more examples which we can see. Krishna climbed the stairs. The tailor stitched the clothes. They played football yesterday. Yes, now students, one more important thing which you need to remember is verbs का जो काम होता है वो वही काम करता है, ठीक है। verbs का काम क्या होता है, it talks more about the subject or it shows what the action is being carried out by the subject. मतलब ये आपको याद रखना है कि जो verb होता है उसका काम वही रहता है, या तो वो आपको दिखाएगा कि सब्जेक्ट ने कौन सी एक्शन की, या फिर आपको वो बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर सब्जेक्ट के पास क्या है, या सब्जेक्ट कैसा है, राइट। इट माइट बी टॉकिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट।
द ओनली थिंग विच चेंजेस इज द एक्शन टाइमिंग, कब हुई वो एक्शन, राइट। अभी जैसे हमने पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा 13th वाला, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, है ना। जो एस का चेंजेस है वो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, वो मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने वो चैप्टर आपको समझाया था। बट फॉर पास्ट टेंस देर आर नो सच थिंग्स, इवन दो योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, आपका जो वर्ब है वो वही रहेगा, पास्ट फॉर्म एक ही होता है, और वही पास्ट फॉर्म हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका काम भी वही होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का काम क्या था, टू टॉक मोर अबाउट द सब्जेक्ट और टू शो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। इन द सेम वे पास्ट टेंस में भी वही काम है उसका, लेकिन उसका जो एक्शन का टाइमिंग है वो चेंज होता है, ठीक है। पास्ट मतलब जो एक्शन ख़त्म हो जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट होता है तो जो एक्शंस चल रही है या फिर आज हुई है या फिर जो एक्शंस होती रहती है रेगुलर बेसिस पर, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, राइट। सो य कृष्णा क्लाइंब्ड द स्टेयर्स, य क्लाइंब्ड इज अवर वर्ब, राइट। और वो क्या दिखा रहा है, हु इज़ कैरिंग आउट दैट एक्शन, कृष्णा, है ना। कृष्णा एक्शन कर रहा है, मतलब कृष्णा जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, एंड क्लाइंब्ड जो है वो है हमारा वर्ब। ना वर्ब क्लाइंब्ड इज V2, और आपका V1 मतलब बेस फॉर्म क्या होगा, क्लाइंब, मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, ed का एडिशन किया टू मेक कन्वर्ट इट इनटू पास्ट फॉर्म, ओके। क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब इज बेस फॉर्म एंड क्लाइंब्ड इज पास्ट फॉर्म, और उसमें हमने ed का एडिशन किया, ठीक है। द टेलर स्टिच्ड द क्लोथ्स, नाउ योर स्टूडेंट्स, स्टिच्ड इज द वर्ब एंड हु इज कैरिंग आउट दैट एक्शन, tailor, right? The tailor is carrying out the action of stitching the clothes, right? So stitched is our verb, and it is which form, students? Oh, just hold on. Yes, stitched. What do you think, which form it is? Yes, it is V2, that means past form. और हमारा V1 क्या होगा बेस फॉर्म, वो होगा स्टिच, ठीक है। स्टिच हमारा बेस फॉर्म है, और जब हम उसके अंदर ed ऐड करते हैं तो वो हो जाता है स्टिच्ड, एंड दैट इज आवर पास्ट फॉर्म, ओके। एंड थर्ड वन, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, योर स्टूडेंट्स, प्लेड इज द वर्ब, राइट, एंड हु कैरिड आउट द एक्शन, दे। सो प्लेड इज आवर V2, and what do you think, what could be V1? V1 मतलब बेस फॉर्म, राइट। क्या होगा हमारा V1 यहाँ पे, yes, वो होगा प्ले, ठीक है। प्ले इज V1 और द बेस फॉर्म, एंड प्लेड इज कंसिडर्ड टू बी V2, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट वन। We add ed to the verb to form simple past tense, right? Now there are some verbs जिसके अंदर हम सिर्फ ed या फिर d या फिर ied लगा के उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, इट चेंजेस टोटली। जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ब है डांस, सो डांस के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ डी ऐड किया, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ई एट द एंड, है ना। डांस का क्या हो जाएगा, डांस्ड, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ डी का एडिशन किया। वैसे ही यहाँ पे दूसरा वर्ब है प्ले, एंड व्हाट डिड वी ऐड ओवर हियर, वी एडेड ई डी टू चेंज इट इनटू पास्ट टेंस। इन द सेम वे वी हैव अनदर वर्ब विच इज़ वॉक, ठीक है। दिस इज आवर बेस फॉर्म, and when we add ed to it, it becomes walked, and that is our past tense, or you can say the past form of the verb, जो V2 भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। and some verbs do not follow this rule, जैसे कि write का हो गया wrote,
सिंग का हो गया sang, eat ate, राइट. देयर आर मैनी अदर वर्ब्स जो वो रूल फॉलो नहीं करते हैं, मतलब IED नहीं लगता है, ठीक है, या ED नहीं लगता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब्स होते हैं वो नॉर्मली दो फॉर्म में डिवाइड होते हैं. एक होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होता है इरेग्युलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर हम DED या IED लगाते हैं वो. दोज आर कंसिडर्ड टू बी रेगुलर वर्ब्स. ओके, रेगुलर वर्ब्स मीन्स विच फॉलो द रूल, है ना. रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? द वर्ब्स विच फॉलो द रूल ऑफ एडिंग DED और IED. ठीक है. अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा डांस, राइट. डांस का हो गया डांस्ड, प्ले का हो गया प्लेड. अभी मान लो मैं लिखती हूँ क्राई, तो क्राई का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस? क्राइड. तो यहाँ पे हमने वाई को निकाल कर IED ऐड किया. सो ये क्राइड जो है वो है हमारा V2. ओके, एंड क्राई इज़ आवर V1. सो दीज ऑल वर्ब्स जिसमें हम DED या IED ऐड करते हैं वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स, और दूसरे होते हैं इरेग्युलर वर्ब्स. इरेग्युलर मतलब जिसके लिए कोई रूल स्पेसिफिकली बना नहीं है. You don't know what kind of changes you can make over there, and that's why it is called irregular verbs. ठीक है. जैसे write हो गया wrote. यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे write जो है हमारा V1, उसको जब हमने चेंज किया into V2 तो हमने क्या लिखा? wrote. तो यहाँ पे I जो है वोवेल वो चेंज हो गया into O, है ना. वैसे ही sing का हो गया sang, यहाँ पर भी I का हो गया A, एंड eat का हो गया ate. That is totally different, right? So that is how irregular verbs work. We don't know what is the specific change in the verb, right? And that's the reason we need to learn the irregular verbs. क्योंकि उसके अंदर changes जो होते हैं वो कोई रूल लगा के नहीं करते हैं हम लोग, इसीलिए उसको हमें याद रखना पड़ता है. ठीक है. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, राइट. एंड व्हाट डू वी डू इन दैट सेंटेंस, और हमारा जो वर्ब होता है वो किस तरह से चेंज हो सकता है. नाउ वी वुड बी लर्निंग हाउ टू राइट अ सिंपल पास्ट टेंस इन अ नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव मतलब जो नॉर्मली हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो. ठीक है. Let's see our first example over here. So students, as I told you before that whenever we are using simple past tense, at that time हमारा जो verb का form होता है, right, जो V2 use करते हैं हम लोग, वो according to the subject does not change. मतलब subject का जो नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होता है, और पर्सन के हिसाब से भी नहीं चेंज होता है. वेदर इट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, वी डू नॉट चेंज दैट फॉर्म. वो V2 ही रहेगा इफ़ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. जैसे कि यहाँ पे है I और you sang, she और he sang, they और we sang, Madan sang a song and Madan and Chintu sang a song. Now अगर ये हम देखते हैं I and you, right? I first person singular, second first person, you is second person singular and plural both, right? उसके साथ भी हमने यूज़ किया sang a song. Then we have she or he which represents third person singular, है ना. उसके साथ भी हमने verb यूज़ किया हमारा V2 that is sang. देन वी हैव दे और वी. दे एंड वी दोनों ही प्लूरल है. दे थर्ड पर्सन प्लूरल है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, राइट. उसके साथ भी हमारा जो वर्ब होगा वो है sang. फिर मदन. मदन इज़ द नेम ऑफ अ बॉय एंड इट रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर. उसके साथ भी हमने यूज़ किया sang विच इज़ V2. एंड लास्ट वन मदन एंड चिंटू, इट रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट. दो बॉयज़ है ना, दो बॉयज़ के नाम है, तो इसीलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो है sang. ओके. नाउ व्हेन यू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस,
व्हेन यू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस, तब अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड है, इफ़ योर सेंटेंस इज हैविंग ओनली एन एक्शन वर्ड, then you need to do one thing, that is when you change it into negative you have to add did not. ठीक है, what you can use did not to make it negative. did not का short form होता है didn't, और जब भी हम सेंटेंस में did का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है डिड नॉट यूज़ करके, या अगर आपके सेंटेंस में डिड है पहले से, ठीक है, वो पॉजिटिव है और डिड है उसके अंदर, और जब आप उसको डिड नॉट करते हो मतलब नेगेटिव बनाते हो, तब भी आपको अगर सेंटेंस में डिड होता है, देन योर मेन वर्ब, जो आपका मेन वर्ब होता है, वो हमें वापस V1 में रखना पड़ता है. V1 मतलब बेस फॉर्म में लाना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है वी sang a song, right? Now students, if you see this sentence, sang जो है वो हमारा past tense है, मतलब ये sentence past में है, we sang a song. Now if I ask you to make it negative, what we are going to do, यहाँ पर हमारे पास action verb के अलावा और कोई word नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे did not, और we did not sang नहीं लिखेंगे, ठीक है, sang हमारा past tense है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा बेस फॉर्म जो है sing. We did not sing a song. ओके, सो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपके सेंटेंस में did या did not का यूसेज होता है, whenever you use did or did not in your sentence, at that time you have to bring your main verb into base form. Okay, remember that. जैसे कि I or you did not see the man. Now if you see this sentence students, did not see the man, see हमारा base form है, ठीक है, it is our V1, और उसका V2 क्या होगा, saw. लेकिन did not यूज़ करने की वजह से हमने saw नहीं यूज़ किया, हमने see यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव दिखाने पास्ट दिखाने के लिए डिड का यूज़ किया है, जो हमेशा पास्ट टेंस को रेफ़र करता है, और उसके साथ जो हमारा मेन वर्ब होता है उसे हमें वापस बेस फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे है आई और यू डिड नॉट सी द मैन, शी और ही डिड नॉट सी द मैन, दे और वी डिड नॉट सी द मैन, and Lata did not see the man, and Mala and Lata did not see the man. Here students, we don't have to remember many changes, क्योंकि अगर नेगेटिव बनाना है और पास्ट है तो हम डिड नॉट यूज़ कर सकते हैं, राइट. और जो वर्ब है वो आपको याद रखना है कि उसको हमें प्रेजेंट टेंस में और यू कैन से बेस फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है. वैसे ही जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, व्हेन वी मेक क्वेश्चंस, at that time also what you are going to do, you can bring the did before, ठीक है, जो did होता है सेंटेंस में उसको हम पहले लाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सेंटेंस में एक्शन वर्ड के अलावा अगर कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, इफ़ वी डू नॉट हैव एनी अदर वर्ब एक्सेप्ट डिड, सॉरी एक्शन वर्ड, then we have to use did to make a question in past tense. You need to remember students, what did I say, when you want to make a question in past tense, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड है, इफ़ योर सेंटेंस इज हैविंग ओनली एन एक्शन वर्ड, देन यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन यूजिंग डिड इफ़ इट इज़ पास्ट टेंस. और उसके बाद आपको याद रखना है कि आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब है, जो पास्ट में होगा उसको आपको प्रेजेंट में करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे है डिड आई और यू प्ले द पियानो. मान लो यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, आई प्लेड ए पियानो. ओके, नाउ दिस इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट टेंस, है ना. प्लेड जो है वो हमारा V2 है, इसीलिए ये हमारा पास्ट टेंस है. आई प्लेड ए पियानो. नाउ इफ़ आई आस्क यू टू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट,
फर्स्ट थिंग, प्लेड के अलावा और कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है हमारे पास, है ना. वी डोंट हैव एनी अदर वर्ब एक्सेप्ट प्लेड विच इज़ एन एक्शन वर्ड. So we cannot use an action word to make a question. So what we are going to use? We are going to use did. Okay, what we are going to use? We are going to use did. So what is the question that we are going to make? Did I play the piano? Okay, and then question mark. So you need to remember, whenever you make a question in past tense, and if you don't have any you don't have any other verbs except the action word, then the formation would be did plus subject plus verb. और verb का कौन सा वाला फॉर्म यूज़ करोगे आप? V1. और क्यों V1 यूज़ करना है? क्योंकि हमने सेंटेंस में ऑलरेडी डिड का यूसेज किया हुआ है, इस वजह से. ठीक है. एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर जो भी बचता है वो. ओके, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन व्हेन द सेंटेंस ओनली हैज़ एन एक्शन वर्ड. ओके, जैसे कि डिड आई और यू प्ले द पियानो, डिड शी और ही प्ले द पियानो, डिड दे और वी प्ले द पियानो, did Pip play the piano, and last one, did Sam and Pip play the piano, right? So you can note over here students कि हर एक के अंदर हमने did का यूज़ किया है ना, whether it is I, you, he, she, it, they, we, और nouns है जो थर्ड पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. जो भी होता है, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें एक्शन वर्ड के अलावा और कुछ प्रेजेंट नहीं है तो हमें डिड यूज़ करना है. और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होता है, मतलब जो एक्शन वर्ड होता है, उसको हमें वापस बेस फॉर्म में लाना पड़ता है, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, राइट, रिलेटेड टू पास्ट टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पोर्शन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.